कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, Experiment of Michelson and Stahl. Michelson and Stahl proved the semi-conservative nature of DNA in 1958. They used Escherichia coli bacteria, which is commonly known as E. coli bacteria and found in human gut. They used normal culture technique, heavy isotope labeling, and centrifugation technique. In normal culture technique, we grow up a bacteria in artificial culture medium. In heavy isotope labeling, we replace an element by heavy isotope using artificial culture technique. And in centrifugation technique, we use centrifugation machine to separate the heavy material from light material. If we use this technique, the heavy material deposit in the bottom of the test tube and the light material float on the surface. Now, the procedure of the Michelson and Stahl technique. Michelson and Stahl raised the E. coli bacteria on culture medium having heavy isotope of nitrogen, that is N15, by using ammonium chloride. N15 is a heavy isotope of the nitrogen. The normal nitrogen have N14 and the heavy nitrogen is N15. So they grew up the normal bacteria on solution or culture medium having heavy isotope for several generations, so that both strands of the DNA get labeled by N15. After so many generations, they get the generation of the bacteria having both strands with N15. This DNA with both strands with heavy nitrogen or N15 is called heavy DNA. Now, Michelson and Stahl took a sample of bacteria and grew it in the culture medium having normal nitrogen. Okay, now they took a sample of heavy DNA bacteria and grew it in the normal culture medium. Okay, and what is the source of nitrogen here? Ammonium chloride. Okay, now after every generation, when they grow it, after every generation, E. coli bacteria divide in 20 minutes, and after every 20 minutes it's produce its next generation. So after every generation they extract the DNA by the centrifugation and observe the result. When they observe the result, they got surprised, because when they observed, they got in first generation every bacteria, all bacteria have the DNA with one strand with heavy nitrogen and another strand with light nitrogen. It means that in the DNA, one strand is N15 and another strand is N14. So this DNA is called hybrid DNA. They got hybrid DNA. Okay. In second generation they got both hybrid and light in equal amount. Okay, the ratio of hybrid and light is 1:1. In third generation, the ratio of hybrid and light is 1:3. Then in fourth generation, the ratio of hybrid and light is 1:7. And in fifth generation, the ratio of hybrid and light is 1:15. So they observed that the ratio of the amount of hybrid DNA is stable, is not changing, it is a constant, it's always 1, 1, 1, 1, 1. And it is only possible when DNA replication have semi-conservative nature. So by their experiment, they proved that DNA replication have semi-conservative nature. That's all. तो अब मेसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं। मेसेल्सन और स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1958 के अंदर किया गया था
और इसने प्रूव किया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन की नेचर होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। अब सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब है क्या? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव है क्या। सेमी कंजर्वेटिव ये है कि डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो बनने वाला नया डीएनए जो है वो उसमें एक स्ट्रैंड या उसकी एक पीएनसी नई होती है और दूसरी पुरानी, यानी दो में से एक तो होगी नई और दूसरी पुरानी होगी। डॉटर डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड न्यू होगा। इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। समझ में आया? तो अब ये कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूव करने के लिए मिचेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इकोलाई बैक्टीरिया यूज किया, एस्चेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया यूज किया, जो कि हमारे ह्यूमन के गट में मिलता है। और उन्होंने नॉर्मल कल्चर टेक्निक, हेवी आइसोटोप लेबलिंग टेक्निक और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज की, जिसे डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन भी कहा जाता है। अब यहां पर हम तीनों टेक्निक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल कल्चर टेक्निक के अंदर किसी भी बैक्टीरिया सेल को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, जिससे वो डिवाइड करती है और क्या करती है? अपनी मल्टीप्लाई कर देती है। इससे उनका एक बंच मिल जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉर्मल कल्चर टेक्निक। हैवी आइसोटोप लेबलिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को या सेल को उसके हैवी आइसोटोप वाले कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। तो अब बैक्टीरिया के अंदर या जो सेल के अंदर क्या जाएगा? कल्चर मीडिया के थ्रू क्या जाएगा? हैवी आइसोटोप जाता है और नॉर्मल एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है। जितने भी नए बैक्टीरिया या नई सेल बनेंगी उनके अंदर क्या होगा? वो हैवी आइसोटोप आ जाता है। इसे कहते हैं हैवी आइसोटोप लेबलिंग या हैवी आइसोटोप मार्किंग। अब तीसरी टेक्निक थी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, जिसे डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? एक खास तरह की मशीन होती है जो बहुत तेजी से रोटेट करती है। इसमें हम खास तरह की टेस्ट ट्यूब डालते हैं। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम सेल को डालते हैं या किसी भी मटेरियल को डालते हैं तो हैवी मटेरियल जो है वो बॉटम के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और जो लाइट मटेरियल है वो ऊपर सरफेस पे तैरने लगता है, ठीक है। अगर हम इसको सेल को इसमें डाल देंगे, अगर सेल को इसमें डालेंगे तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है वो हैवी होता है, तो वो क्या आ जाएगा? जेनेटिक मटेरियल नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाएगा और बाकी जो हल्का है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम मीडियम किसका यूज करते हैं? इसमें मीडियम हम यूज करते हैं सीजियम क्लोराइड का, ठीक है। सीजियम क्लोराइड का एक स्टैंडर्ड मीडियम के तौर पे यूज करते हैं। यहां पर अब इस टेक्निक के अंदर यहां पर मिचेल्सन और स्टॉल ने दो केमिकल यूज किए थे। एक तो था NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि किसका सोर्स था? नाइट्रोजन का सोर्स था, ठीक है। हैवी नाइट्रोजन का भी सोर्स यही था और लाइट नाइट्रोजन का भी सोर्स यही था। और दूसरा था सीजियम क्लोराइड CaCl, जो कि एक क्या काम कर रहा था? स्टैंडर्ड मीडिया का काम कर रहा था। किसमें? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 2 स्टेप में किया, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? इकोलाई लिया, नॉर्मल इकोलाई, द इकोलाई विद द लाइट डीएनए लिया, ठीक है, जिसमें लाइट डीएनए कौन सा डीएनए होगा? जिसमें दोनों स्ट्रैंड पर N14 लाइट नाइट्रोजन हो, उसे हम कहेंगे इकोलाई विद द लाइट डीएनए। अब उसको उन्होंने किसमें कल्चर करवाया? कल्चर्ड इन मीडियम हैविंग हैवी नाइट्रोजन N15 NH4Cl फॉर मैनी जनरेशन, यानी बहुत सारी जनरेशन तक उन्होंने क्या करवाया? इसको कल्चर कराया। किस मीडियम में? हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में कल्चर कराया। तो उनको एक बंच मिला इकोलाई विद द हैवी डीएनए। अब उनको एक गुच्छा मिला, बंच मिला इकोलाई बैक्टीरिया का, जिसमें सभी में क्या था? हैवी डीएनए था। हैवी डीएनए यानी N15 उन्होंने इसमें से एक सैंपल ले लिया, इकोलाई विद द हैवी डीएनए उन्होंने ले लिया। चलिए ले लिया तो आगे देखते हैं। अब उसको उन्होंने क्या किया? कल्चर किया। कल्चर्ड इन द मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl फॉर 1 जनरेशन और 20 मिनट। पहले एक जनरेशन के लिए किया। जब एक पहली जनरेशन के लिए किया तो उनको जो इकोलाई मिला उसमें हाइब्रिड डीएनए था। हाइब्रिड डीएनए मतलब कि द डीएनए हैविंग, ऐसा डीएनए जिसमें एक स्ट्रैंड में N14 हो, दूसरे स्ट्रैंड में N15 हो, दोनों N15 भी है N14 भी है, तो ऐसे डीएनए को क्या कहेंगे? हाइब्रिड डीएनए, ठीक है।
ऑल हाइब्रिड मिले, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सेकेंड जनरेशन की 40 मिनट्स के बाद में, तो इन्हें हाइब्रिड और लाइट डीएनए का रेशियो जो मिला, 2 हाइब्रिड मिले, 2 लाइट मिले। अब रेशियो निकालेंगे तो 2:2 कितना हो जाएगा, 1:1, ठीक है। तीसरी जनरेशन इन्होंने निकाली तो इन्हें जो सेल मिली उनमें जो हाइब्रिड थे वो थे 2 और लाइट थे वो हो गए 6, ठीक है। तो 2:6 कितना हुआ, 1:3, तो ये रेशियो मिला उनको, ठीक है। इस तरह से आगे फिर 1:3 के बाद 1:7, 1:15 ऐसे मिलते गए। तो उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया, अब इन्होंने कैसे पता चला उनको कि ये रेशियो ऐसे है, ये रेशियो उनको ऐसे पता चला, जब वो अपने एक्सपेरिमेंट के बाद डीएनए एक्सट्रैक्ट करते थे, डीएनए को निकालते थे सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर हैवी डीएनए, यहां पर रेड कलर का दिख रहा है, वो सबसे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, ओके। जो लाइट डीएनए है वो ऊपर तैरने लगेगा, ग्रीन कलर का है ऊपर तैर रहा है, ठीक है। और हाइब्रिड डीएनए जो है मिड के अंदर आता है, ठीक है, जो यहां पर पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है। और इसमें जो है मीडियम जो है वो क्या है, CSCl मीडियम है। इस मीडियम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट या ये जो है सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। तो यहां पर जो सबसे पहला सैंपल लिया था इकोलाई विद द लाइट डीएनए, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर हमको एक ही बैंड मिलता है ऊपर ग्रीन कलर का, जो क्या है, लाइट डीएनए, ठीक है। फिर जो दूसरा बंच ऑफ इकोलाई विद हैवी डीएनए है, उसमें से सैंपल लेते हैं इकोलाई विद द हैवी डीएनए, उसका अगर हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो हमें बॉटम के अंदर मिलता है, ठीक है, जो रेड कलर का यहां दिखाया है इसे कहते हैं हैवी डीएनए, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन इकोलाई विद द हैवी डीएनए की फर्स्ट जनरेशन जो होती है, उसका जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमें हाइब्रिड डीएनए मिलता है, ओनली हाइब्रिड डीएनए मिलता है जो बीच में दिखता है, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन का करते हैं तो 1:1, यानी कि हाइब्रिड और लाइट दोनों बराबर बराबर मोटे दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने थर्ड जनरेशन में आए, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ये रेशियो हो गया 1:3, ठीक है। जैसे ही हम अगली जनरेशन में आए, फिर से हम कौन सी, फोर्थ जनरेशन के अंदर आए, ये रेशियो हो गया 1:7। देखिए ग्रीन कलर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, यहां पर इसको 7 पट्टी मिल गई है, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड का है वो सेम रह रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से जब इस रिजल्ट को हम देखेंगे तो हमको मिलेगा कि जो जनरेशन 1 है जो 20 मिनट के बाद होती है, उसमें हाइब्रिड डीएनए कितना है, 1, लाइट डीएनए 0, ठीक है। हाइब्रिड दूसरी जनरेशन के अंदर जो 40 मिनट के बाद मिलती है, उसमें हाइब्रिड डीएनए कितना है, 1 और लाइट भी 1, चलिए कोई बात नहीं। फिर थर्ड जनरेशन जो होती है जो 60 मिनट के बाद मिलती है, उसमें हाइब्रिड डीएनए कितना है, 1 और लाइट कितना है, 3। फिर जो फोर्थ जनरेशन है 80 मिनट के बाद मिल रही है, उसके अंदर हाइब्रिड डीएनए कितना है, 1 और लाइट डीएनए कितना है, 7, ठीक है। और अगर हम n यानी कोई भी n जनरेशन लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उसमें टाइम कितना लेगा, n/20, ठीक है। और उसमें हाइब्रिड डीएनए कितना मिलता है, 1, और यहां पर लाइट डीएनए का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1, यानी ये आपको निकालने का है। अगर आपको कोई भी जनरेशन पता हो, कि जनरेशन पता है दे रखी हो, और आपको लाइट डीएनए का अमाउंट निकालना है या रेशियो निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो अब इस पूरे के पूरे रिजल्ट को गौर से देखिए, तो हाइब्रिड डीएनए का अमाउंट स्टेबल है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन लाइट डीएनए लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाइब्रिड डीएनए नहीं बढ़ रहा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब क्या हो, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का हो। तो इससे पता चल गया और प्रूव हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन की नेचर क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।